Assalamu alaikum students, welcome to Mathematics Mind. Today again I'm here with chapter 7 and the name of the chapter is ratio, rate, time and speed, and today the topic that we will cover is practice now 12. Okay, so in practice now 12 the topic or the questions that is related to speed and in which we have to find out the speed of the various things. We have to equalize different units and for the speed, when we are talking about the speed, so there is a formula for the speed that is given in your book, that speed is equal to total distance travel and time taken. ठीक है, time taken to cover that distance. So this is the formula of speed. By using this formula we solve different questions. So in the question number 1 we have a train travels at a speed of 48.6 km per hour. Express this speed in a part I we have to express this speed in meter per second. Okay, the data or the question that is given in a form of 48.6 km per hour. We have to find out, convert this data according to the unit that is meter per second. So firstly we have to convert the unit. Okay, this is the speed, the distance given in the kilometer. We have to convert this into the meter. So we are shifting from greater unit to smaller unit. So we multiply by, as we know that 1 kilometer is equal to 1000 meter. So we have to multiply our distance with the 1000. So distance is given 48.6 kilometers. So you have to convert this kilometer into meters. So 48.6 multiplied by 1000. By multiplying this 1000, we convert this distance that is in the form of kilometer into meter. So 48600. So this is the distance in meter. We also check by the calculator that 48.6 multiplied by 1000. Okay, it is equal to 46800. Now we have to convert the time, and the time given in the hours. 1 hour is equal to in seconds 3600. So 1 hour is equal to 3600 seconds. So time is given in hours and we have to convert this hour into seconds, and the distance that is given in the kilometer, we convert this distance according to the requirement that is the meter. So now put the values in the formula. As the speed is equal to 48.6 kilometer per hour. So when we convert this kilometer into meters, so we have an answer 48600 meters, and 1 hour is equal to, as the coefficient of h is 1, so 1 hour is equal to 3600 seconds. Now do the simplification. You can use the calculator here. I'm solving this by the help of calculator. 486 divided by 36. So this is equal to 135 meter per second. So this is the speed of the train. As the speed is given the question kilometer per hour, or after solution we have to convert this in the required unit, that is the meter per second. So it is done with the part I. Now move towards the second part, in which we have to solve our answer. We have the same data, the speed given in 48.6 km per hour. We have to convert this speed into centimeter per minute. Okay, so this is the answer. When we divide 486 divided by 36, so we get a final answer in the speed that is 13.5 meter per second. Now move towards the second part of this question. Okay, in the second part we have to find out our answer in centimeter per minute. Okay, given that आपके पास again है किलोमीटर पर आवर, हमने इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है सेंटीमीटर पर मिनट में. अब सबसे पहले आप चेंज करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला लिख लें. स्पीड हमारे पास कितनी गिवन दी हुई है, दैट इज़ 48.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है हमारे पास. अब 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 100,000 centimeter. So we firstly have to convert this kilometer into centimeter, and the second thing is that 1 hour is equal to 60 minutes. ठीक है, आपके पास जो रिक्वायर्ड आपके पास जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर और मिनट है. हमने क्या चेंज करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. इन दोनों को कन्वर्ट कर लिया, जिनको हमने
रिक्वायर्ड है जिनको हमने डिवाइड करना है। अब स्पीड को आप कन्वर्ट करेंगे रिक्वायर्ड यूनिट्स में 48.6 किलोमीटर से सेंटीमीटर में मूव करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100,000 सेंटीमीटर से। और 1 ओवर है, एच रिप्रेजेंट द ओवर, तो उसको हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, सो 1 ओवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, रिक्वायर्ड आपकी यूनिट आ गई है। अब कैलकुलेटर से उसको ऑफ कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 48.6 मल्टीप्लाई बाय 100,000, दिस इज 486 4 zeros and divided by 60, so you have to divide it by the 60 and answer is 81,000 centimeter per minute. So this is the required कि आपने किस तरह से किलोमीटर पर आवर में जो आपके पास स्पीड थी एक बस की, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर पर मिनट में। Now move towards the practice now. 11 question number 2 that is related to the word problem. Okay, the question is the cheetah is the fastest land animal capable of attaining a speed of 110 km per hour. In August 2009, the world record for the man's 100 meter speed was set at 9.58 seconds. How many times is a cheetah as fast as a human sprinter? ओके जी, स्प्रिंटर क्या होते हैं? जो कि फास्टेस्ट रनर होता है। जिस तरह कोई भी आपके पास रेसिंग गेम होती है, गेम है, उसमें जो फास्टेस्ट रनर होगा वो हमारे पास स्प्रिंटर होता है। हमने कंपैरिजन करवाना है कि अगर पर आवर के हिसाब से चीता की स्पीड हमारे पास कितनी है 110 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पर आवर के हिसाब से वो इतना दौड़ सकता है, उसकी कितनी स्पीड है, तो हमने बतानी है कि सबसे पहले आप डाटा देखिए कि हमारे पास जो स्प्रिंटर की स्पीड गिवन है वो है कि वो 100 मीटर कवर करे कितने 9.58 सेकेंड्स में। जब हम किसी भी चीज़ को कंपैरिजन कराते हैं तो हमारी यूनिट सेम होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम जो मैन की स्पीड है, जो कि स्पीड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसकी यूनिट कौन सी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ चीता है उसकी, ताकि जब हम कंपैरिजन करवाएं तो इनकी यूनिट सेम हो। स्पीड का फार्मूला हमारे पास गिवन है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, लेकिन डिस्टेंस और टाइम की यूनिट्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे उन यूनिट्स में जो कि हमारे पास चीता की स्पीड के हिसाब से दी हुई, दैट इज़ किलोमीटर एंड आवर्स। आफ्टर दैट वी विल कंपैरिजन के चीता कितना फास्टेस्ट है, यानी कि फास्टर है ह्यूमन स्प्रिंटर से, ये तो पता है, लेकिन कितना फास्टर है, कितने पॉइंट्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन स्प्रिंटर, हमने ये फाइंड आउट करना है। सो पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हम ह्यूमन की स्पीड फाइंड आउट कर लें और उन यूनिट्स को कन्वर्ट करें जो कि हमारे पास यूनिट दी गई हैं कंपैरिजन के लिए अकॉर्डिंग टू द चीता स्पीड। ओके जी, डिस्टेंस मैन स्प्रिंटर स्पीड आपके पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आपके पास जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर और टाइम हमारे पास कितना है 9.58 सेकेंड। अच्छा जी, अब हमने कंपैरिजन कराना है चीता की स्पीड से। इन चीता की स्पीड आपको दिए हुए 100 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे हमारे पास आवर्स है। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट्स को चेंज करते हैं। अब हम मीटर से किलोमीटर की तरफ स्विच करें, स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर की तरफ करें, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब भी आप स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे होते हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी ग्रेटर की तरफ कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 1000 and 9.58 seconds, and we want to convert these seconds into hours. So हमारे पास 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 3600। अब आपके पास ये जो हमने कन्वर्जन की इसकी वजह से किलोमीटर पर आवर में यूनिट आ चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ब्रैकेट्स को यूज़ किया करें और मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली कर लें आप। 100 डिवाइडेड बाय 1000, आई होप सो दिस इज विजिबल, यस। ओके जी, देन डिवाइडेड बाय 9.58 डिवाइडेड बाय 3600. So the value that we have is 37.578. आगे राउंड ऑफ कर लें आप, आपके पास टर्मिनेटर नहीं है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास आ गया किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कि ह्यूमन स्प्रिंटर की आपके पास कितनी स्पीड आई है, दैट इज़ 37.578। ये होगी मैन स्प्रिंटर की, और हमारे पास चीता की स्पीड पहले से गिवन थी। अब हमने कंपैरिजन कराना है कि चीता की स्पीड कितनी फास्टर एज कंपेयर टू द ह्यूमन स्प्रिंटर। सो यू हैव टू डिवाइड इट
Okay, so now we find number of times the cheetah is faster as the human sprinter. So you have to write this statement. कुछ भी लिख लेंगे ना इसकी जगह. Number of times cheetah is fastest as man sprinter. ओके जी, अब हम फार्मूला लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे. हमारे पास जो चीता स्पीड है दैट इज़ 110 किलोमीटर पर आवर. अब यूनिट्स दोनों की सेम है. हमारे पास ह्यूमन स्प्रिंटर भी हमारे पास जो स्पीड फाइंड आउट की थी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आ चुकी है. हमारे पास ये स्पीड कितनी थी 37.578. ओके जी, 37.578 किलोमीटर पर आवर, ताकि हम इसका कंपैरिजन इजीली करवा सकें. अब हमने फाइंड आउट करना है कितना पॉइंट ज़्यादा फास्टेस्ट है चीता एज कंपेरिजन टू द ह्यूमन स्प्रिंटर. सो यू हैव टू डिवाइडेड 110 divided by 37.578 and the answer is 2.9 272 whatever, so you have to round it here, that is 2.9 किलोमीटर पर आवर. हमारे पास जो स्पीड फास्टेस्ट है चीता की, चीता इज़ 2.9 किलोमीटर पर आवर फास्टेस्ट एंड एज़ कम्पेयर टू द ह्यूमन स्प्रिंटर. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन जो मैंने सारे कैलकुलेटर से किए, ये वाले स्टेप्स ये सारे आप मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है आपके पास. सो बेटर आप कैलकुलेटर से करके इसको सोल्व कर लिए. रादर जिस चीज़ की आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस है आपको कमांड आप उसमें कर सकते हो. सो यू हैव डन हियर विद द प्रैक्टिस नाउ 12. नाउ मूव टुवर्ड्स exercise question, that is question 1 and 2, and so we did it on the next lecture. Yes, so in the next lecture we'll cover the exercise 7D question 1 to 4. So take care yourself. Allah Hafiz.